Sangita 46, Psalm 46, and heading goes like this. God is our fortress to the choir master of the sons of Korah, according to Alamoth a song. अलामोत का मतलब ये है और उसका वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, लगभग ऐसा होता है अलामोत. इट इज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. इट लुक लाइक दिस एंड आई थिंक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लाइक वर्जिन, कन्या कन्या ऐसा बोलते हैं ना, वर्जिन. इसका मीनिंग ऐसा है शब्द का, जब मैंने गूगल में ढूंढा था. लेकिन वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ऑलमोस्ट गिटार की समान आवाज आता है शायद, विथ स्ट्रिंग. सो भजन संगीता का टाइटल का मतलब ही वही है, सॉन्ग और प्रेज बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विच हैज स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. सो अलामत करके इंस्ट्रूमेंट लगभग ऐसा होता है. सो वहाँ हेडिंग में लिखा है, इसलिए मैंने दिखाया. Psalm 46 stands as one of the most profound and comforting passages in the Hebrew Bible, offering assurance of God's presence and protection amidst chaos and uncertainty. It is a psalm that has inspired countless believers throughout the history, serving as a source of strength in time of crisis. The psalm's central theme is God is our refuge and strength. I think that is the heading. God is our fortress, a very present help in trouble. It encapsulates the enduring faith of Israel in the sovereignty and steadfastness of God. So Psalm number 46 का main theme है, उसका heading God is our fortress, and it has inspired a lot of generations, lot of Christians, lot of believers in different generations. So whenever we hear a verse or a quotation which gives a positive vibe or positive energy in our mind, of course we like it. In the same way, many believers like this psalm because almost all verses gives us a comfort, or the words of comfort, words of encouragement, by saying in the midst of all uncertainty, in the midst of all struggles and suffering, God is our refuge, God is our fortress. I think fortress का मतलब वही है ना, कोठा. हिंदी में क्या लिखा है हेडिंग? शरण स्थान. फोर्ट सुना? लाल किला, किला है, लाल किला. किलाओं को क्यों बनाते थे पुराने समय में? एंशिएंट इजराइल टाइम आल्सो दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट किलास, फोर्ट्रेस और फोर्ट्स. लाल किला क्यों बना के रखा इंडिया में? 80 रुपए देके जाके देखने के लिए. फिर दुष्टों से कभी गया किसी ने लाल किला में? गया? जाने के बाद भी पता नहीं है क्या है वो, अंदर नहीं गया. सो युद्ध का समय में जो लोग किला के अंदर है उसको कुछ नहीं होगा, समझ आया? So in this Bhajan Sangita 46 also same kind of a context is there. God is our fortress. वहाँ हम है तो हमको वही और कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता है, समझ आया? That is what the author want to say. And the main message is, central theme is God is our refuge and strength and very present help in trouble. मुसीबत का बीच में हमको मदद करने के लिए वो परमेश्वर हमारा refuge है, our strength है. ये है भजन संगीता का main theme. Then when we come to historical context, from the heading itself we can see, to the choir master of the sons of Korah. Sons of Korah का जो choir master है उनके लिए लिखा था how they should sing. They should sing with the music instrument alamoth. They should sing with the music instrument alamoth. That is written in your Bible 46 का heading. इसके बाद लिखा है a song, एक गीत है. The historical setting of Psalm number 46. ऊपर से. Despite their ancestors' rebellion against Moses, the descendants of Korah were later reinstated into temple service. So yesterday we had a doubt. इन लोगों का पिता लोगों को मार डालने के बाद इन लोगों को क्यों इस जगह पर इस सर्विस को दिया था, सौंपा था. So पहला फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 6, चैप्टर 9 and second Chronicles chapter 20 and some verses are there.
पहला इतिहास का किताब 6 का 31 से लेकर 38, पहला इतिहास 9 का 19, दूसरा इतिहास 20 का 19। इन वचनों के अनुसार one thing is very sure, after this punishment that took place in Leviticus, Numbers chapter 16 I think, उसके बाद इनका पीढ़ियों से इन लोगों को फिर मंदिर का अंदर आराधना अगुवाई करने का लीडिंग का वो पोस्ट को इन लोगों को दिया था। आफ्टर देयर ancestors were killed, so after some time, after I think one generation, after some generations, according to this proof which you have here, they were appointed as chief musicians in the temple. They were appointed as chief musicians in the temple. That's how they came into the scene. They मतलब sons of कोरा इस कहानी में कैसे आया करके पूछा तो उनका पिता लोगों का ऐसा कुछ पीड़ा आने के बाद उन लोगों को मंदिर का अंदर आराधना अगुवाई करने के लिए चुना था। आपका कुर्सी हो है, चुना था, चुनकर इन लोगों को पोजीशन को दिया था। अभी ये लोग वहां का लीडिंग करने वाला और वहां का मुख्य व्यक्ति के लिए गीत लिख रहा है, कैसे इस गीत को गाना है करके भी इंट्रोडक्शन में लिख के रखा है। इधर तक समझ आया? And they even mention how they should sing this song, with which music instrument they should sing this song. That music instrument का नाम है अलामोत। वहाँ footnote number 1 लिखा है, नीचे आकर देखना, probably a music or liturgical term. So हिब्रू में उसका मीनिंग ढूंढ रहा था, वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का फोटो मैंने दिखाया था वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का फोटो आया। As you click on this link, you can see. शायद ऐसा था, सब लोग ऐसा बैठ के इसके साथ गाते थे। Then the historical setting of Psalm number 46 is not explicitly stated. In which context exactly इस भजन संगीता को लिखा था, that is not mentioned there. In exactly कौन सा समय में संदर्भ में इस भजन संगीता को लिखा गया था वहां मेंशन नहीं किया। लेकिन some scholars says that and they propose that it was written during the time of King Hezekiah, which means First King chapter 18 I think, Second King chapter 18, हिजकिय्याह राजा का कहानी। How many of you remember? हाँ, कल रमेश को कमल और प्रवीण अमर सिंह मिलके एक्सप्लेन कर रहा था पुराना नियम का कहानी। बताओ किंग हिजकिय्याह का कहानी कहाँ तक सीखा पुराना नियम का? आप 4 लोगों से ही सवाल। क्वेश्चन फॉर 4 ऑफ यू। हाँ, वो तो वहाँ है, आपको भी चश्मा है, मेरा चश्मा आज भूल गया। टिल कहाँ तक कहानी को सीखा पुराना नियम का? शंभू भाई से लिया। सच में है शंभू? कमल से लिया। टाइम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पुराने नियम में हम 0 है। एंड मे बी यू विल बिकम ए वर्शिप लीडर। वो समय बहुत वचन दोहराना पड़ेगा संदर्भ के साथ, तब किसी ने हमारा जैसा लोग वहां से आकर पूछेगा, पास्टर जी ये हिजकिय्याह राजा का कहानी क्या था? पता नहीं, लेकिन मैंने तो आराधना तो अगुवाई किया। मैं पूछूंगा कल से लेकर। वो बातें टाइम निकाल के करना, चाय पीने के समय, वो मोबाइल लेकर वीडियो कॉल करके पूरा घूमने का समय, तब किसी से पूछना इसका कहानी क्या है, मतलब वो टाइम मैनेज कर ये टाइम के लिए टाइम निकालना। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो पुराना नियम में 0 होगा। किंग हिजकिय्याह शायद 25 उम्र में उसको राजा बनाए थे। राजा बनाने के बाद उनकी कहानी में ऐसे लिखा है, वो ऊंचा स्थान था, मतलब अन्य देवी देवताओं का बलि चढ़ाने की जगह और ऐसा वाला चीजों को निकाल कर याहुवे का आराधना इन्होंने शुरू किया था। वर्शिपिंग मतलब यहोवा का आराधना का शुरुआत मतलब बहुत समय से बंद पड़ चुका था। हिजकिय्याह राजा का समय में उन्होंने क्या कर दिया, फिर इंपॉर्टेंस दिया, वर्शिप को इंपॉर्टेंस दिया। कौन सा राजा? हिजकिय्याह। तो सम स्कॉलर्स सेज दैट ये जो भजन संगीता वो समय में लिखा गया था। तो सम स्कॉलर्स सेज दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हिजकिय्याह, दैट इज सेकंड किंग चैप्टर 18 और 19, वो समय में when he reinstalled worship,
तब इसको शुरू किया था। वहां हम देख सकता है मंदिर का अंदर बहुत सारा चीज थे, साथ ही साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी था वो समय। समझ आया? उस समय में सन्स ऑफ कोरा इस भजन संगीता को, इस गीत को, इस भजन को लिखा था करके some scholars are saying. Maybe you understood. During the time of King Hezekiah, some scholars say, because there is no direct evidence regarding when and in which context the psalm was written. So some scholars, after reading, after textual analysis, they say that during the time of King Hezekiah, that is 2 Kings chapter 18, 19, 20. I think 20 में उनका बेटा आता है मनुष्य। So King, I think it starts from 2 Kings chapter 16. During the time of King Hezekiah, this psalms or this hymn took place. They wrote this psalm. In that event, God intervened supernaturally, destroying the Assyrian forces overnight. वहां ये लोग युद्ध लड़ने के लिए कुछ सोच में था, परमेश्वर का आत्मा उतर कर वहां कुछ किया ना, सबको बस में कर दिया। कुछ है कहानी। Somebody open and see क्या हुआ था वहां, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट और वो कॉन्टेक्स्ट से मिलने वाला कुछ वचन इस भजन संगीता का अंदर है। सेकंड किंग चैप्टर 18-19 में कहाँ पे है? सन्नकरीब का एक उस रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर सूर्यों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। हाँ वही है। कितना लॉन्ग कहाँ लिखा है? 18 का 19 का 35। And that night the angel of the Lord went out and Yes. struck down 1,85,000 in the camp of the Assyrians. And when people arose early in the morning, because these were all died. So वहाँ वो जो भजन संगीता का कॉन्टेक्स्ट पहले मैंने बताया था, the God is our fortress, मतलब हमारा, हमको चुप, मतलब क्या बोलते उसको, शरण स्थान के समान परमेश्वर करके बोलते भजन संगीत को शुरू किया। मे भी ये जो इंसिडेंट होने के बाद, मतलब वो जो शत्रु लोगों को परमेश्वर हराने के बाद ये लोग धन्यवाद की गीत के समान इस भजन संगीता को गाया होगा। So after that fight, after that war, when God helped them during that night, after that they sat together and they worshipped Lord, and that is Psalm number 46। समझ आया नहीं आया? हिजकिय्याह राजा का समय में युद्ध में ये लोग जाने से पहले ही परमेश्वर वहां के शत्रु लोगों को हराया। उसके बाद ये लोग वो हराने की वजह से धन्यवाद के रूप में इस भजन संगीता को गाया होगा करके हमको थोड़ा सा सबूत मिलता है जब पढ़ने के समय। अभी एक एक वचन पढ़ के देखना, पढ़ के देखना, मतलब somebody please read loudly. God is our refuge and strength, every presence help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give away, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its water roll and foam, though the mountain tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitations of the Most High. So if you read 2 Kings chapter 19 verse 34, there you can see God says, for I will defend the city to save it for my own sake and for the sake of my servant David. मतलब परमेश्वर इन लोगों को मदद किया, but there was one condition। परमेश्वर ने क्या बोल के मदद किया? for my own sake and for the sake of David, मतलब परमेश्वर he is faithful। उन्होंने एक वाचा बांधा था,
वो वाचा को पूरा करने के लिए, in order to fulfill his promise, he did that. Then you read Psalm number 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. भजन संहिता 46 का 10वें वचन. ये दोनों वचन को कंपेयर करके देखना. परमेश्वर ने ये युद्ध में इन लोगों को जीत दिया था, इन लोगों को क्या दिया, मदद किया था. परमेश्वर का एक उद्देश्य था, in order to fulfill his promise he did that. क्योंकि जब वो when we study in पूरा इतिहास, हिजकिय्याह राजा ने बीच में कुछ गलती भी किया था, जो नहीं करने का था वो भी किया था. क्या किया था? मंदिर का अंदर जो था शत्रु को नहीं दिखाना था, शत्रु को नहीं अपने अंदर लेना था. उन्होंने लेके अगर सब कुछ दिखाया था, जो जगह से लड़ने के लिए परमेश्वर बोला, वो लड़ने से दोस्ती भी करने के लिए कोशिश किया. कहानी तो याद आया होगा. God asked them to fight with some nation, and what he did, he made friendship with them by giving some gold and silver. So in that context, if you read that verse, God says, I will do it for my own sake, and I will do it for the sake of David, because I have promised. There is a promise from God to the generation of David. So दाऊद का संतान, दाऊद के जनरेशन की बीच में परमेश्वर एक वाचा था, उसका पूरा करने के लिए दिया. 46 का 10 पढ़ के देखना. बी स्टिल, इसका हिंदी क्या है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. ये किससे बोल रहा है? So be still and know that I am God. उतना ही बातें समझने के बाद दोनों का वचन तुलना करके देखना. You can understand the context very well. Then literary structure or division. Verses 1 to 3. God has refuge and strength amidst natural chaos. मतलब मुसीबत का, परेशानी का बीच में परमेश्वर हमारा संकेत है, हमारा परमेश्वर हमारा स्ट्रेंथ है, बल है. ऐसा वाला एक सिचुएशन में था ये लोग. जो लोग इनसे दोस्ती करके वो लोग तो सोचा वही लोग इनसे क्या करने के लिए आया, लड़ने के लिए भी आया. 4 to 7. God's presence in the city of Zion ensuring its stability. जियोन शहर पर परमेश्वर का हुजूरी है, उन लोगों को कोई नहीं हरा सकता है करके एक कॉन्फिडेंस. वर्सेस 4 to 7. रीड वर्स 5 वर्स बी. वहां शत्रु लोगों को हराते हुए कब, कौन, कहा देखा था, कौन सी समय में देखा था? हिजकिय्याह राजा का कहानी में रात को हराया, सुबह देखा, ऐसे लिखा है ना. मतलब सुबह देखा, पक्का. सुबह देखा तो युद्ध लड़ने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ. अभी रीड वर्स 5 का सेकंड पार्ट. पाव करते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है. There is some connection, right? There is some connection, right? Last time परमेश्वर बोला. So when you read, मतलब कनेक्शन हम कभी कभी खुद बनाना पड़ेगा, एक एक वचन को लेकर पढ़ने के समय वहां का एक कॉन्टेक्स्ट और इधर का कॉन्टेक्स्ट लेकर. समझ आया ना? Then 8 to 11. God's sovereignty over the nations and his ultimate peace. सारी देश का ऊपर परमेश्वर ही अधिकारी है, परमेश्वर ही राजा है करके कुछ बातें बोलते हुए भजन संहिता को खत्म किया है. एंड इन दिस सम यू विल फाइंड सेला 3 times. मतलब रिपीट गाने का वो जो शब्द है सेला करके, वो 3 बार लिखा है. वचन 3 में एक बार लिखा है, 7 में एक बार लिखा है, उसके बाद 10, 11 में एक बार लिखा है. 3 वचन के बाद एक बार लिखा है. समझ आया ना? डिविजन. The tune of this psalm is, the psalm opens with a declaration of faith. भजन संहिता के शुरुआत के वचन में लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. विश्वास के बारे में पूरा स्थापित करते हुए कुछ बातें बताया. मेरा विश्वास कहाँ है, मेरे लिए परमेश्वर कौन है. वर्स 1 पढ़िए.
परमेश्वर हमारा सरलस्थान और बल है। संकट में अपने सहज से So it starts with the words of confidence, or it starts with the declaration of faith, and in the second portion it shifts from cosmic imagery to city of God. वहाँ सियोन करके, ज़योन करके शहर के बारे में बताता कि उन्होंने क्या बोला, ये शहर किसका है। वहां पढ़ के देखे तब समझ आएगा। वर्स 4 से एक नदी है जिसके लहरें से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में। सो सियोन या ज़योन करके सिटी, और बाद में उसको जेरूसलम करके भी कहा गया है। ये परमेश्वर की शहर है। इधर जीने वाले लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, किसी से हरा मतलब फेलियर नहीं होगा। सो इन द सेकंड सेक्शन इट शिफ्ट फ्रॉम कॉस्मिक इमेजरी टू सिटी ऑफ गॉड बाय सेइंग those who are living in this city, they belongs to the group where the people of God are living. So they will not lack anything. They are safe and secure in that place. And in the final section, it is an invitation. In the final section, it is an invitation. Come and see the works of the Lord. Where it is written? In which verse? Verse 8. Come behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. It starts with the tuning it starts with the declaration of faith. Again it says where the people of God are living, and it says for that people of God come and see the works of the Lord. परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, आकर देखना। समझ नहीं आया? पहले विश्वास की बातें बताया, उसके बाद ये विश्वासी लोग कहाँ जीता है करके बताया, उसके बाद ये विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या उपकार किया आके देखिए करके दूसरों को बुलाने का एक इनविटेशन से भजन संगीता खत्म हुआ। समझ नहीं आया? How many of you understood till this point? पक्का? Theological themes, which means titles for your sermon. God as refuge and strength. I think that is the first verse. God is our refuge and strength. God as refuge and strength. When we say about refuge and strength and all, if you consider this word, this terms into a situation of war, युद्ध का समय में ये जो शब्द वहाँ बहुत प्रभाव था, क्योंकि युद्ध से बचाने तक कहाँ जाकर बैठना पड़ेगा। कोई किला होगा या कोई पहाड़ होगा, मतलब वहां नहीं बैठा तो जरूर क्या हो जाएगा। सो ये जो शब्द को कॉन्टेक्स्ट में डाल के पढ़ के देखा तो बहुत इंपॉर्टेंस था उन लोगों के लिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा एक अनुभव नहीं है। जब युद्ध होगा, इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध के बारे में पढ़ा था ना, उन लोगों के वहां ज्यादा तक घर का बिल्डिंग का ऊपर कितना ऊंचा है उतना भी नीचे भी है। अभी सुना है, पढ़ा? बिल्डिंग अभी ऐसा वाला बिल्डिंग है तो या 3 फ्लोर ऊपर है तो उसका 2 फ्लोर नीचे होगा, मिट्टी का नीचे। क्यों? व्हाई दे कंस्ट्रक्ट इवन अंडरग्राउंड? दे डोंट नो व्हेन ऊपर से बॉम्ब गिरेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे इवन कंस्ट्रक्ट रूम्स इवन डाउनसाइड। न्यूज में नहीं देखा? बहुत बिल्डिंग टूटा फूटा पड़ा है इजराइल में, गाजा में, बट फिर भी न्यूज आता है वहां फिर बॉम्ब गिरा, वहां फिर लोग मर गया करके। नहीं पढ़ा? नहीं सुना? कैसा ऑलरेडी टूटा फूटा है, उसका बीच में मतलब उसके नीचे लोग अभी भी है कुछ लोग। इवन हॉस्पिटल स्कूल्स आर रनिंग इवन अंडरग्राउंड। इन द सेम वे, मतलब ये जो थोड़ा समझाने के लिए बोला, ये रिफ्यूज, फोर्ट्रेस, फोर्ट, वो जो शब्द को अभी कितना प्रभाव है हमको पता नहीं, वो जो समय में और ऐसा वाला अनुभव में जीने वाले लोगों को दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनका जीवन की बात है वहां। देन डिवाइन प्रेजेंस इन द सिटी ऑफ ज़ायन। डिवाइन प्रेजेंस, परमेश्वर का प्रेजेंस के बारे में लिखा है। सन के एक बोतल वहां से लेकर इधर से डिवाइन प्रेजेंस। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। डिवाइन प्रेजेंस के बारे में बताने के समय, प्रचार करना ये समय बोल सकता है। द टाइटल इमैनुअल मीन्स गॉड इज विथ अस और गॉड विथ अस।
Point number 3, sovereignty over nature and nations. सृष्टि एंड सृष्टियों का ऊपर परमेश्वर का अधिकार, यह सर्वव्यापी है परमेश्वर इन सब चीजों से ऊपर। पॉइंट नंबर 4, पीस थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो समस्या में परमेश्वर शामिल होने से या परमेश्वर इंटरवीन करने से उन लोगों को शांति मिलता है करके वचन में लिखा है। एंड वहां वचन में बी स्टिल करके एक वचन आप देख सकता है, वो आइसैया 2:4, मीका 4:3 में भी लिखा है। इट इज अ कमांड, वर्स 10, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। Oh, that is a command. The same command is there in Isaiah 2:4 and Micah 4:3. Be still करके एक वचन है वहां, वर्स 10। सेम बात है, Isaiah 2:4, Micah 4:3 में भी लिखा है। When you preach, you can connect both contexts. Literary devices, you can see contrast between chaos and calm. Contrast मतलब chaos and calm, मतलब बहुत बड़ा आवाज, बहुत बड़ा आंधी तूफान के बारे में बताकर उसी वचन का नीचे और बताया होगा सब शांत है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही है, पहला एक विषय के बारे में बताया, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट वाला वचन को सेम वचन में जोड़ के बताता है। केओस का मतलब क्या है? केओस केओस मतलब सर कुछ ऐसा बहुत चीज होता है सर साथ में क्या होता है? मतलब मतलब जैसे कि कोई जगह पर भगदड़ मच जाना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। भगदड़ मच गया, ये तो समझ आएगा। गड़बड़ केओस का मतलब ये है बॉम्ब गिरते रहेगा, बहुत बड़ा आवाज आते रहेगा, जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहना पड़ेगा, खाना नहीं होगा, पीना नहीं होगा, ऐसा वाला एक अवस्था है केओस। मतलब हिंदी में करेक्ट शब्द क्या है पता नहीं। Those who understood the meaning of chaos, amen for them. समझ आया केओस का मतलब क्या है? हमने क्या बोल रहा था? हाँ, मतलब ये वन लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड हियर, कॉन्ट्रास्ट। पहला बताया गड़बड़ी के बारे में, उसी वचन के नीचे सेकंड पार्ट में बताया होगा सब शांत है। कॉन्ट्रास्ट मतलब पहला एक विषय के बारे में बताया, इन ऑपोजिट टू दैट सब्जेक्ट the same thing it is written in the down side, or the opposite thing is written in the down part. For example, verse 4, 3, 4 and 5. चाहे समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे, एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान को पवित्र सुखा और प्रधान के पवित्र। मतलब ऊपर क्या एक केओस सिचुएशन के बारे में लिखा, नदी का ऐसा हुआ है, ऐसा होकर के लिख कर नीचे लिखा है परमेश्वर का एक नदी है, वहां सब कुछ शांत है। सो दैट इज कॉन्ट्रास्ट। देन रिपीटेशन, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस करके शायद रिपीट हुआ है, वर्स 7 में भी है, और कहाँ है? द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस, वर्स 11 में भी है, रिपीटेशन। सो टू लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस साम, कॉन्ट्रास्ट एंड रिपीटेशन। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉल्टर और ऑथर का कॉन्टेक्स्ट में से भजन संगीत को देखा तो कौन सा राजा युद्ध का समय में है, ऐसा किया, और क्या हुआ युद्ध में से? सुबह उठ के देखा तो युद्ध लड़ने का जरूरत भी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, they gathered together and they start worshipping Lord, and that Bhajan Sangita we have, that is Bhajan Sangita 46. So context from the author, लेखक का कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से देखा तो कैसा वाला संदर्भ में था भजन संगीता लिखने के समय? युद्ध के लिए तैयार हुआ था पूरा देश, लेकिन परमेश्वर ने मदद करने से युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं आया, और
one thing they have to do, they have to give thanks to the Lord. So they gathered together and they भजन संगीता को गाया. जस्ट लाइक लाल समुद्र पार करने के बाद मिरियाम और लोग क्या किया? एक्सोडस चैप्टर 15 and 16 क्या किया? सो इन द सेम वे धन्यवाद करना है करके नियम है, उनको पता है, इसलिए झुंड में मिलकर इस भजन संगीता का वचनों में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद का गीत गाया. इन बिटवीन दे सेड इन वर्स 10 बी स्टिल, मतलब ये लोग कुछ नहीं किया था, लेकिन सुबह उड़ते उड़ते समझ आ गया परमेश्वर का काम ही है. बी स्टिल का मतलब क्या है? स्टैचू. कुछ नहीं किया, स्टैचू जैसा बने रह, मतलब खड़ा होना. आपके लिए परमेश्वर काम किया है, तब पता चलेगा ही इज गॉड. देन आई विल बी एक्सॉल्टेड अमंग द नेशंस. परमेश्वर ने एक बात बोला था, मैंने ये काम करता हूं किसके लिए? मेरा नाम के लिए और दाऊद का. अभी वचन का मतलब आ रहा है कनेक्शन में? आ रहे नहीं आ रहे? और अभी भी ऐसे ही लग रहा है पुराना समय है. देन द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर फोर्ट्रेस. पुराना चीजों को भी वो लोग याद किया. याकूब से समय से लेकर क्या क्या हुआ वो लोग याद किया. हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी देखा है. जब वहाँ सेकंड किंग चैप्टर 18, 17, 18, 19 में युद्ध का एक समय था, और युद्ध का समय में कौन सा देश का लोग लड़ने आया था? असीरियन. सो वो जो कॉन्टेस्ट में लिखे थे, ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट में देखा था. व्हेन यू टेक द वर्ड फोर्ट्रेस, रिफ्यूज, माउंटेन्स, मोस्ट हाई, शाटरिंग, ये जो शब्द को लेकर कॉन्टेस्ट में मिला के देखा तो बहुत बड़ा मतलब है इस शब्द का. बहुत बड़ा मतलब है इस शब्द का, शाटरिंग. वर्स 9 पढ़िए. Make war yes to the end of the earth. He break the bow and sheltered the spear. He burned the chariot with fire. वहां क्या हुआ था युद्ध में? ये लोग सुबह उठते क्या देखा? सब वो कनेक्शन से आकर वर्ष नंबर 9 पढ़ के देखना. कौन करता है करके वचन 9 हमको बताता है. Who is doing all these things? Verse 9 says, God will do all these things. So, स्टोरी में रथों को चलाना ये सब बराबर नहीं होता है. जो लाइन में लिखा है ना, वो ये चिकन की स्टोरी में नहीं होता. सिर्फ इंसान मर जाता है. कैसे मर जाता है? युद्ध में आने के समय थोड़ी मोबाइल लेके निकलेगा वो लोग. हाथ में क्या क्या होगा? रथों को आग में छोड़. हाँ, ये सब नहीं हुआ. रथ में ही आया होगा वो लोग. वो वचन अच्छे से पढ़ के देखो. रात में सोए थे, उसके बाद क्या होगा? वचन पढ़ो. 18, 19. नहीं बता रहा था उसे रात में क्या हुआ. वर्स कौन सा वर्स? 35. And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And the people arose in the early morning because they were all dead bodies. वहाँ क्या कौन उतरा, क्या किया? So in order to express those things, वहाँ क्या क्या ये लोग देखा? घोड़े का जो क्या बोलते, चैरियट से घोड़े के घर की क्या बोलते हैं, ये सब कुछ क्या हो गया? टूटा फूटा पड़ा है. वहाँ शाटर हो गया. मतलब शाटर का मतलब ही क्या है? शाटर एक भूकंप आया तो पूरा ये सब कुछ क्या हो जाएगा? इन द सेम वे दे सो ऑल दोस फेलोज दोस हु केम फॉर वार, क्या हो गया है वहाँ? तब जाकर वचन 9 पढ़ के देखना. दे एक्सप्रेस्ड इट इन सच ए वे. वो लोग जो बातें वहां देखा, वो बातें वहां अच्छे से लिख के रखा, और मुंह खोला तो सभी समझ आया. He makes war cease
to the end of the earth. What is meant by ceasing? क्या है ceasing? Cease करना क्या है? वो कुछ लोग कुछ करने के लिए निकला था, वो लोग ही वापस जाने के जैसा हो गया। क्यों वापस गया? रात को परमेश्वर का आत्मा वहां उतरा था, पूरा तितर बितर हो गया, शाटर हो गया। इन लोगों को कुछ करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ा। अभी वर्स 10 पढ़ना, बी स्टिल। सो इफ यू आस्क देम देयर टेस्टिमनी, वो लोग बताते हैं हमने कुछ नहीं किया। सुबह उठ के क्या देखा? सुबह उठ के सब मरा पड़ा हुआ देखा, तब उनको समझ आ गया, we came to know that he is our God and I will be exalted among the nations. सारी देश ये बातें देखकर क्या हो गया? अभी कॉन्टेक्स्ट मैच हुआ। In Jewish liturgy, this psalm is an expression of protection. यहूदी लोगों का समाज में, उन लोगों का सोसाइटी में यह भजन संगीता परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करेगा करके डिक्लेयर करने का समय ये भजन संगीता को लेकर वो लोग गाते थे, क्योंकि दिस साम्स कॉन्टेक्स्ट इज लाइक दैट। ये दिस साम्स कॉन्टेक्स्ट इज गॉड विल श्योरली हेल्प और गॉड विल श्योरली सपोर्ट अस। So Jewish people used to take this psalm and they used to sing when the same context that occurs in their life. The assurance that God is with us. They used to sing this song and with an assurance, परमेश्वर हमारा साथ है, God is with us. In Christian tradition also, when the enemy comes to fight with us, if we are sure God is with my side, God is in my side, you can sing this song by saying with the surety, God is my refuge and my strength, and He is very present help in trouble. If we have that surety, we can sing. Otherwise, you can sing, शत्रु आकर क्या करके चला जाएगा? हमको शाटर करके चला जाएगा। समझ आया? अगर हमको शाटर करके चला गया तो we can't read verse 8, क्योंकि लोगों को बुलाकर क्या दिखाना है? परमेश्वर मुझे मदद किया करके दिखाना है ना। अगर हमको मदद नहीं किया तो बुलाकर क्या दिखाना पड़ेगा? मैं ही टूटा पड़ा हूं, मुझे लेके जाना। सो भजन संगीता 46, if we can compare this psalm with psalm number 2, you can compare this psalm with psalm number 2. In which context? Psalm number 2 begins with the context of war, fighting, chaos, and saying, my God is looking from heaven and He is here. Also same situation. They came to for fighting, सब तैयारी करके आया, परमेश्वर ऊपर से 1 मिनट में सबको, उन लोगों की मेहनत को, their hard work did not get any result. So same context, Psalm number 2 and 46. You can connect this psalm again with Isaiah chapter 8 and Nahum chapter 1. Protection in the midst of chaos. Context. मुसीबत परेशानी के बीच में परमेश्वर का प्रोटेक्शन, ये टाइटल के अंडर आइसाया चैप्टर 8 एंड नाहुम चैप्टर 1 को आप कनेक्ट करके प्रचार कर सकता है। And you can connect this psalm with many New Testament events, especially यीशु मसीह के चेला लोग समुद्र में जा रहे थे, तब यीशु मसीह आकर क्या किया? केओस को चुप हो जाकर के समुद्र से बोला तो क्या हो गया? याद है? ऐसा कुछ हुआ था नया नियम में? कितनी बार हुआ? हाँ? एक ही बार हुआ। What will be the application from this psalm for today's generation, or today if we are going to preach from this psalm, what will be your application for this psalm? Write it first. God gives us. सब अपना अपना एप्लीकेशन लिख के बता रहा हो, एक एक बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। God gives us stability in chaos. You can write that is your application. God gives us stability in the midst of chaos.
संगे ये पानी को निकाल के God will help us at last time. We have been end time. टाइटल क्या है आपका, मतलब एप्लीकेशन क्या है इन वन सेंटेंस? सो सब लोग बताना पड़ेगा, सबसे पूछ के ही 47 में जाऊंगा. In midst of enemies. God is ready to help us in every situation. God will help me in midst of enemies. God will help me in the midst of enemies. God deliver us from God delivers us from troubles. Ramesh, God is not far. सब लोग यही बता रहे, कुछ नया तो सोचो. Think from the context. God is protect from our enemies. God will, God is protect for our enemies. मतलब शत्रु लोगों के लिए परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा. God is my side. God is my side. God is still, God is my side. आशीष को नहीं मिला, बताओ. सेम बात है, क्यों रोटेशन करके लिखता है? I will anything. नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि हिजकिय्याह राजा ऐसा किया था, मदद नहीं किया. कल्पेश, जितेंद्र, छोटा बड़ा पंकज, विपिन, अमर सिंह, दत्ता भाई, संगे. God does have authority over human and nature. God will give us victory during time of trouble. God will give us victory during the time of trouble. He still we will do that. Sir, God provide us. Be still. हमने बताया, अभी बंद कर, लिख के रखो. वहाँ वचन लिखा है वो. He still he will do that. He will fight for us. Be still and he will fight for us. God is high. God is just I will not. That God provide divine security. Yeah. God's provide divine security. वहाँ लिख के रखो, ये आपका पेपर में आना है बात है. कल्पेश, एवरी ट्रबल एंड मुसीबत, दोनों एक ही है. रेस्ट एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड. ऐसा कैप्शन बनाना, आप लोग बोलने के समय तुरंत किसी को लिखने का मूड आना है. रेस्ट एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड. रेस्ट एंड ट्रस्ट. जब चेला लोग यीशु मसीह नाव पे जा रहा था, when wind came, when तूफान came, what Jesus Christ was doing? अच्छा से सो रहा था, रेस्ट कर रहा था. So you can connect that portion with this. If you are sure, if I am sure that I am fulfilling the purpose of God, even in the midst of chaos, trouble, tufan, or even in the midst of big waves, I will sleep nicely in the boat. यीशु मसीह ने वही किया था. पिता ने जो बातें करने के लिए भेजा था, वो पूरा करने के लिए उनका सारे काम था. So he was sleeping nicely in the boat. वही था ना कहानी. So rest and trust in the Lord. If you obey the commands, you can rest in the midst of trouble.